پہ قبائلی علاقوں کے مسائل پر غور کے لیے ایک جرگہ منعقد کیا گیا ہے اور اس وقت تمام نمائندین اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جو ایجنڈا متعین کیا تھا وہ قبائلی متاثرین کے لیے تھا، جو بے گھر ہیں، آئی ڈی پیز ہیں، جو اس وقت قبائلی علاقے کے عوام پہ گزر رہی ہے، بالخصوص اس وقت جو شمالی وزیرستان کے عوام پہ گزر رہی ہے۔ پہلے آئے تو گرمی کی شدت میں ان کے بچے بھونے گئے، اور آج ابھی وہ ایک سخت سردی کے موسم کے انتظار میں ہیں۔ اس حوالے سے ان کے ساتھ ایک بھرپور یکجہتی کا اظہار آج کیا گیا، اور اس حوالے سے جو ایک گرینڈ قبائلی جرگہ چند روز بعد یہاں اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں منعقد ہو رہا ہے، ان تمام رہنماؤں نے اس میں شرکت اور اس کو کامیاب بنانے کا عزم ظاہر کیا، اور تمام قبائل کی مشاورت سے قبائلی علاقوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اقدامات کا فیصلہ کیا کہ ان کے مشورے سے آئندہ کیا اقدامات کیے جائیں گے، کس طرح ان کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ہم آگے بڑھ سکیں گے، اور کیا وسائل ہم نے اس میں استعمال کرنے ہیں، کیا حکمت عملی ہم نے اس میں استعمال کرنی ہے۔ اس عزم پر آج ایک اتفاق رائے ہوا ہے، اور یہ ایک اچھا آغاز ہے۔ اسفندیار صاحب کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس اہم موضوع پہ ہمیں دعوت دی اور ایک آغاز کر دیا، تاکہ جو آئی ڈی پیز ہیں اور جس کا جو انتہائی متاثر لوگ ہیں اور قبائل ہیں، ان قبائل کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، اس کے لیے یکجہتی کی ضرورت ہے، اتفاق رائے کی ضرورت ہے، اور اتفاق رائے سے اس مشکل سے قوم کو نکالنے کا ایک عزم ہے، اس کا ایک آغاز ہے جو آج کر دیا گیا ہے۔ یہ آج ایک مختصر ایجنڈا جو ہے وہ اس اجتماع کا موضوع تھا، جس پر بات چیت ہوئی، اور جو طے ہوا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ کیا طے ہوا مستقبل میں آئی ٹی پیز کے مسائل اور فاٹا کے مسائل کے حل کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ میں نے عرض کر دیا ہے کہ چونکہ ایک گرینڈ قبائلی جرگہ اسلام آباد ہی میں بلایا جا رہا ہے، اور اس میں تمام اکابرین شرکت کریں گے، اور وہاں سے ہم پھر اس کی پوری حکمت عملی متعین کر کے آگے بڑھیں گے۔ مولانا پختون جو ہیں وہ اپنی میزبانی کے لحاظ سے بڑے معروف ہیں، اس کے اوپر کوئی بات کی گئی؟ جو آئی ڈی پی سے گولیاں ماری گئی، تشدد ہوا، لاٹھی چارج ہوا، مولانا بالکل اس کے ساتھ ریلیونٹ ہے کہ پختون میزبان ہوتے ہیں، بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، اور آپ گولیاں چلائی گئی ہیں، اور عمران خان جن کی حکومت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ڈی پیز ہماری ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ اس کے اوپر تو میرے خیال میں اگر سراج الحق صاحب کوئی تبصرہ کر لیں تو بہتر ہوگا۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت صاحب آپ بتا دیجیے گا کہ آئی ڈی پیز کس کی ذمہ داری ہیں؟ جب جن کی حکومت ہے، آپ بھی اس حکومت کے اتحادی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، آپ پختون بھی ہیں، آپ کی روایات اور پھر ذمہ داری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس جرگے میں ہم نے طے کیا تھا کہ ہمارے تمام موضوعات ایک طرف، لیکن سب سے اہم موضوع اس وقت آئی ڈی پیز کا مسئلہ ہے۔ بہت سارے سیاسی سینکڑوں موضوعات موجود ہیں، لیکن ہم نے اپنے مجلس میں طے کیا تھا کہ ان کو ایک طرف رکھیں گے، اور خاص کر ہم آئی ڈی پیز کے مسئلے پہ بات کریں گے۔ آئی ڈی پیز کس کا مسئلہ ہے، کس کا مسئلہ نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، پوری قوم کا مسئلہ ہے، مرکزی حکومت کا مسئلہ ہے، صوبائی حکومت کا مسئلہ ہے، اور پاکستان کے 18 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم آج یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، اور سب مل کر آئی ڈی پیز کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل کو ہم سمجھتے بھی ہیں، اور ہم آپ کے غم، درد اور تکلیف میں شریک ہے، اور یہی پیغام ہم مرکزی حکومت کو بھی دینا چاہتے ہیں۔ ایک منٹ ایک بات میں ان کے
इजाफा कर दूं, इन्होंने कहा कि ये मरकज़ की और सूबे की और पूरे पाकिस्तान की जिम्मेवारी है, बड़े अदब से ये आप लोगों की भी जिम्मेवारी है। हम जब बैठते हैं और आपकी न्यूज़ बुलेटिन हम देखते हैं, आप मुझे ये बताएं वो जो 1 घंटे का न्यूज़ होता है उसमें तुम कितना वक्त IDPs को देते हो? देखिए, हम सब ने मिल के इस इशू को उठाना है। उसमें सबसे बड़ा रोल आप लोगों का इसलिए है कि मैं तो अगर एक जलसे में उठाता हूँ तो एक मखसूस तबका वहाँ बैठा होता है, वो ही सुनता है। आप जब टीवी पे उठाते हैं तो जो ख़वातीन घरों में बैठी हैं वो भी सुन लेती हैं। तो मेरी आपसे भी यही अपील होगी, खुदारा जो अहमियत है इस इशू की, उस अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए पूरा वक्त उन्हें भी दिया जाए जितना वक्त आप और चीज़ों को देते हैं। मौलाना साहब, साल से तकरीबन साल हो गया कबायली इलाकों में ऑपरेशन जारी है, तो ये बच्ची बोल रही है ज़रबे अज़ब जारी है, उसकी वजह से ही IDPs हैं। 6 महीने हो रहे हैं तकरीबन इस ऑपरेशन को शुरू हुए। आपने इसके ऊपर कोई हिकमत अमली अपनाई कि हुकूमत से क्या कहेंगे कि किस तरह जल्द अज जल्द ये ज़रबे अज़ब ऑपरेशन ख़त्म किया जाए ताकि कबाइल वापस जा सकें? वो तो मेरे ख्याल मौलाना साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे ये कहा कि बहुत जल्द एक ग्रैंड कबायली जरगा आ रहा है, तो इस्लामाबाद में ही होगा। उसके हम सब भी उसमें इंशाल्लाह शामिल होंगे। उसमें भी आप आएँ, वहाँ पे जो सॉलिड वो लोग अपना इनपुट हमें दें। जो कबायली जरगा है वो आके तो वो अपना इनपुट देगा। उस इनपुट की रोशनी में उनके जो तजावीज़ होंगी, उनके जो रेजोल्यूशन होंगे, उसके मुताबिक फिर आप सबको बिल्कुल वाज़ेह लाए अमल हम दे देंगे। मौलाना साहब, ये बताइएगा कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत जो हैं वो IDPs पर सेम पेज पे नहीं है, ठीक है? उनके मसले मसाइल पर एक जगह पे नहीं है वो, ठीक है? एक सूबाई हुकूमत जो है वो IDPs में कोई अगर मसला होता है तो वो उनको जेल में बंद कर देती है, जबकि मारवी मेमन जो हैं वो जाती हैं और वो जाके धरना दे देती हैं और कहती हैं उनको रहा करें। तो सर, क्या हम अमल इस्तेमाल करेंगे कि इन दोनों हुकूमतें जो हैं इनको एक पेज पर आएँ? मेरा ख्याल में IDPs एक ऐसा मसला है जो एक इंसानी मसला है और उसे हम अपने सियासी इख्तलाफात की भेंट न चढ़ाएँ तो बेहतर होगा। और सूबाई हुकूमत भी तो आखिर विफाक की एक वहदत का नाम होता है। विफाक से कोई अलग सूबे का कोई मुस्तकिल ममलकत का तस्वुर नहीं होता। तो इंसानी मामले में जब तक तमाम सियासी जमातें और हमारी सूबाई हुकूमतें हों या विफाकी हुकूमत हो, जब तक वो एक रुख पर अपनी पॉलिसियाँ मुरतब नहीं करती और इस इंसानी मसले पर एक दूसरे को ताउन नहीं देंगी, तो यकीनन हम तो अपनी सियासत के परचम बुलंद कर सकेंगे, लेकिन उससे जो इंसानियत जो है वो मुतासर होगी, उसका तो कोई इलाज नहीं होगा। साहब, एक ही बंदा है जो जिसमें सूबे में हुकूमत भी उनकी है और उसी की वजह से IDPs के मसले तवज्जो हट रही है, तो उनसे भी बातचीत करने का कोई फैसला किया है आप लोगों ने? आया उनको भी इस जो अहम मसला है उसकी अहमियत के बारे में बताएंगे? इमरान खान की बात ये मेरी बात नहीं है। और इसमें जैसे हमने आपको कहा कि चूँकि कबाइल ख़ुद जो हैं वो दाई हैं इस जरगे के, और उसमें वो सियासी जमातों को भी दावत दे रहे हैं। इस्लामाबाद में और कन्वेंशन सेंटर में इस इज्तिमा के करने का माना ये है कि वो कौम की तवज्जो, हुकूमतों की तवज्जो, सियासी जमातों की तवज्जो अपने इस मौजू की तरफ पलट सकें और वो लोग जो हैं तो इस तरीके से अपनी तरफ, तो उन्होंने खुद वो लिया है, इनिशिएटिव लिया है और वो खुद इस बात पर तमाम लोगों को यकजा कर रहे हैं। तो हम उसकी तायीद कर रहे हैं कि वो एक अच्छा इक़दाम है। मौलाना साहब, ये फरमाइएगा, इससे कबल भी एक जरगा हुआ जिसको आपने जिस तरह इस्तेमाल किया, उसमें भी तमाम लीडरशिप आई, मौजूदा वज़ीर भी आए। क्या समझते हैं कि जरगे की तरफ से जो उस वक्त बातें की गई या जो अब जरगे की तरफ से रिकमेंडेशन दी जाएंगी, उसके ऊपर अमल दरामद हो पाएगा? उस वक्त जो इस जरगे ने अपना एजेंडा मुतारफ़ कराया और अपना मुतालबा मुतारफ़ कराया, वो कबायली इलाक़ों के सियासी मुस्तक़बिल के बारे में था और उसमें वो एक अपील कर रहे थे कि हमारे फ़ैसले इस्लामाबाद या पेशावर से ना हों, बल्कि हमें पहले अमन दिया जाए और हमारे बच्चे सुकून पे हों, हमारे घर बाहर जो हैं वो आबाद हो जाएं, हमारे माहौल में जो खूनरेज़ी हो रही है, जो आग जली हुई है, इसमें सुकून आ जाए, तो फिर कबाइल ख़ुद अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करें और उनसे उनकी राय ली जाए।
उस वक्त तो यही तक बात महदूद थी, लेकिन आज जो सूरत हाल है वो ये है कि उसमें IDPs का मसला भी आ गया है, तो मुश्किल में एक इजाफा हुआ है। और उसके लिए ये जो आपके सामने अकाबरीन मौजूद हैं और असफंजार खान साहब ने इसकी तरफ मुतवज्जह किया है, ये चाहते हैं कि अब हम इस मामले को एक ऐसा रुख दें कि जो मसले के हल को यकीनी बनाए और उसको किसी सियासी इख्तलाफ की भेंट न चढ़ने दें। सर माशाल्लाह खान साहब, आपकी बड़ी अच्छी काविश है कि तमाम अकाबरीन को आपने इस अहम जो मसला पर से पोस्ट था उसे सामने लाने के लिए एक छत तले जमा की है। तो क्या मेरा सवाल ये है कि जो कुछ बन्नू में हुआ है, क्या उनकी अश्क शोई के लिए आप अकाबरीन वहाँ का भी दौरा करेंगे? देखें, हमने तो खैर मौलाना साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि हम तो आज ये पैगाम देने सब इकट्ठे हुए हैं कि सियासत हमारी अपनी पार्टियों की अपनी, लेकिन पार्टी सियासत को बालाए ताक रख के, ये एक IDPs का मसला जो है एक इंसानी मसला है, तो हम सियासी इख्तिलाफात, मैं मशकूर हूँ इन चारों का कि इन्होंने मुझसे इत्तेफाक किया, यहाँ आए कि बिल्कुल हम सियासी इख्तिलाफात बालाए ताक रख के इस एक मसले को उठाते हैं। जैसे मौलाना साहब ने कहा, उन्होंने अपना जरगा बुलाया है, उस जरगे में बैठेंगे, जो फैसले आज के बाद हम लोगों ने फैसले नहीं करने, उनके जरगा फैसला करेंगी, और जो फैसले वो करेंगे वो हम जो आपके सामने खड़े हैं हम सब उनके साथ खड़े होंगे। जी जी, तमाम सियासी तस्लीम करेंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू। कबायली इलाकों के मसाइल पर गौर और हल तजवीज़ करने के लिए आपको बताएं कि असफंदियार वली की ज़ेर क़यादत आज सियासी जरगे का इनेकाद किया गया, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, सिराजुल हक और महमूद खान अचकज़ई ने शिरकत की और इसके बाद मीडिया को तमाम तर तफसीलात से आगाह किया गया। लोग जिनको नुकसान हुआ है उनकी दादरसी के लिए इंतहाई जो कुछ हो सकता है वो किया जाए। थैंक यू। इस मौके पर तमाम तरह माहिदीन ने इस बात का इजहार किया कि कबायली इलाके की मुश्किलात जो हैं उनका हल होना चाहिए, इस पर पॉइंट स्कोरिंग की ज़रूरत नहीं है, ये एक इंसानी मसला है। और यहाँ पे